So the actually question is not at all difficult. For n is equal to root 3 only, d theta by dn is m. This type of symbol of function has been devised only to tell you which is dependent variable and which is independent variable. That means under root of 1 minus sine square r1. Cos theta is under root of 1 minus sine square theta. Using that you can work out cos r1. अगर ऐसा होता तो इमेज यहाँ बनता, थीटा घुमाओ तो 2 थीटा से इमेज घूम जाएगा, तो 60 डिग्री पे घुमा के और ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच कर ये क्वेश्चन दिया था, ऑप्शंस ऐसे क्यों दिए थे। मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली उनके मन में घुस के तो नहीं देख सकता। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। टुडे वी विल do 2 problems on ray optics, and the problems have been picked up from past year question papers of JEE Advanced. The problems are not very tough, but I think many of you will learn a lot after I discuss on these problems. So that is the whole aim, that you learn something from these 2 problems. So this is our first problem. Let us read the question. A monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of an equilateral prism of refractive index n. This is an equilateral prism having refractive index n, and light ray is incident at an angle of 60 degree at one of the refracting faces and emerges from the opposite face making an angle of theta, right, with the normal. For n is equal to root 3 and value of theta 60 degree and d theta by dn is equal to m, find the value of m. So the actually question is not at all difficult, but the last statement makes it a bit difficult to understand what exactly is given, what exactly is being asked, a sort of confusing statement. For n is equal to root 3, the value of theta is 60 degree. The statement says when refractive index is root 3, this theta is equal to 60 degree and d theta by dn is n. Actually, for n is equal to root 3, for n is equal to root 3, value of this angle is 60 degree and for n is equal to root 3 only, d theta by dn is m. जब n की वैल्यू रूट 3 है, उसी समय d theta by dn की वैल्यू m, rate of change of theta with n is some number, we have to find that particular number. So यहाँ पे एक hint भी है क्वेश्चन में. The question says that theta is a function of n. So that itself is a hint. This type of expression, this type of symbol of function has been devised only to tell you which is dependent variable and which is independent variable. When this sort of expression is there, this sort of symbol is there, it directly tells you that n is an independent variable, theta is dependent variable. So you have to express theta in terms of n, and thereafter you have to find d theta by dn when n is root 3. Okay? When n is root 3, an additional information has been given that at that point in time theta is 60 degree. So our whole and sole task is to express this angle theta as a function of n. This angle is given, this is fixed 60 degree. This is not 60 degree. You should not start by taking theta as 60 degree. No, what we are supposed to do is we are supposed to write theta in terms of n. For different refractive index of this material, we will get different angle of emergence. So how will this angle of emergence depend on refractive index of the material? That is the question basically. Rest all I think is not very difficult. From Snell's law, on the first surface we can write refractive index of air 1 into sine of 60 degree is equal to refractive index of this medium n into sine of this angle. This angle is usually denoted by r1. So root 3 by 2, which is sine 60 degree into 1, is equal to n times sine r1. This is our equation using Snell's law at the first refracting surface. Similarly, if you apply Snell's law at this second refracting surface, this is angle of incidence which is usually denoted by r2. So let us write it as r2. Refractive index of glass n
into sin r2, n into sin r2. This will be equal to refractive index of air 1 into sin theta. So Snell's law at second surface. Now all of you must be knowing that r1 plus r2 is this angle, because it is an equilateral prism. It is given in the question, it is an equilateral prism. So that prism angle is 60 degree, this is 60 degree. So r1 plus r2 is actually 60 degree, which means r2 can be written as 60 minus r1. So if you write it that way, n sin, in place of r2 I have written 60 minus r1, that is equal to sin theta. Now you open this, expand this using the formula of sin a minus b. So this is sin a cos b minus cos a sin b. So sin of 60 degree cos r1 minus cos of 60 degree, which is half, then sin r1, right. So this expression now contains theta, n and r1. R1 is not a given quantity, isn't it? But we can express r1 in terms of n using the first equation. This is the first equation that we obtained by applying Snell's law at the first refracting phase. So we want a relationship between theta and n. No other variable should be present there. So here this relationship has got theta and n, but then there is r1 also. We need to eliminate it. So using this equation, I am going to eliminate r1 from this equation. It is pretty straightforward. Sin r1 is root 3 by 2n. So in place of sin r1, I can write root 3 by 2n. And if you know sin r1, you can calculate cos r1 as well. So sin r1 is root 3 by 2n. And if you work out the value of cos r1, it is equal to under root of 4n square minus 3 by 2n. That means under root of 1 minus sin square r1. Cos theta is under root of 1 minus sin square theta. Using that, you can work out cos r1. Now substitute the value of cos r1 and sin r1 here. Do some simplification. This is what you will get. This equation transforms into this form. Now in this form, we have got an equation. We have got an equation which has got two variables, theta and n. Theta is our dependent variable, n is our independent variable. So basically we have expressed theta in terms of n, isn't it? So now we will differentiate to find d theta by dn. So we will straight away differentiate this equation with respect to n. If you do the differentiation and some manipulation, this is what you are going to get. आप खुद से कर लीजिएगा. I hope you all can do this. Do this differentiation, differentiate this with respect to n. This n cancels out actually, isn't it? This n cancels out. And the differentiation is rather simple one. It's not at all difficult. So you can just differentiate it, and after differentiating, you can find d theta by dn, right? Now d theta by dn is something which is dependent on theta itself. It should be, isn't it? Because the question does not ask you to give the value of d theta by dn in terms of n only. इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए देखिए क्या किया इन्होंने कहा है कि जिस समय n की वैल्यू रूट 3 है, उस समय थीटा 60 डिग्री है, उस समय तुम d थीटा बाई dn बताओ. तो d थीटा बाई dn की वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बताना है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. तो भाई यहां थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो. समझ गए बात को? थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो तो फिक्स नंबर है ना. थीटा की जगह 60 डिग्री लिखने के बाद n की वैल्यू रूट 3 सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम्हें d थीटा बाई dn की ये वाली वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है. जो इन जनरल अगर बोलें कि d थीटा बाई dn को n के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, देन वी आर गेटिंग दिस cos थीटा, and because sin theta in terms of n is known, again I'll have to write cos theta in terms of n and then make the substitution. So it will be a big expression like that. कर सकते हैं, because d theta by dn में cos theta जो आ रहा है उसको भगा सकते हैं. sin theta is known as function of n, so I can express cos theta as function of n. यहाँ मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स के स्टेप कट कर दिए, तुम कर लेना खुद से, ठीक है. दैट कैन बी डन, पर वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक स्पेसिफिक वैल्यू n जब रूट 3 है तो थीटा 60 डिग्री है, उस समय m की वैल्यू d थीटा बाई dn की वैल्यू पूछी गई है. हाँ, क्या जब थीटा 60 डिग्री है तो उस समय n रूट 3 है, या जब n रूट 3 है
तो क्या थीटा 60 डिग्री है? ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली दे दिया गया। आप देखिए, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री या फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता फॉर n इज इक्वल टू √3 फाइंड डी थीटा बाई डी एन, तब क्या कर लेते आप? तो भाई n अगर √3 गिवन है तो यू कैन वर्कआउट थीटा, यस यू विल गेट 60 डिग्री। करके देखिए, मैंने करके देखा था। सो ये स्टेप आपको बचा ले जाता है, एक स्टेप आपका बच जाता है क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, n जब √3 है और ये 60 डिग्री है तो थीटा 60 ही आता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर n को बदला जाए तो एट व्हाट रेट थीटा विल चेंज विथ n, व्हाट विल बी डी थीटा बाई डी एन। सो यू कैन डू दिस डिफरेंशिएशन एंड गेट द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई, एक स्टेप और अगर आगे बढ़ाना होता तो कुछ ऐसा मॉडिफाई किया जा सकता था। क्वेश्चन में वो सब बातें जो लिखी हैं सो लिखी हैं, उसके अलावा कुछ और भी ऐसा ऐड किया जा सकता है। एज्यूम दैट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इन द रेंज ऑफ लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा। ऐसा मान लो जो इंसिडेंट लाइट है दैट कंटेन्स अ रेंज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा लैम्डा इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू लैम्डा नॉट। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये 4000 नैनोमीटर है, मान लो 1 मिनट 4000 एंगस्ट्रम है, सो सॉरी विजिबल लाइट मान लेते हैं, ये 4000 एंगस्ट्रम है। तो ये जो डेल्टा लैम्डा वो 4000 के सामने काफी छोटी है, हो सकता है कि 50 एंगस्ट्रम हो, चलेगा। Also assume that the refractive index of the material of the prism varies with wavelength as. Now the question says that refractive index of the material of the prism changes with wavelength according to this equation. Here A and B are two constants. Find the dispersion angle of the emergent beam. पिछले क्वेश्चन में बच्चों ये कहा जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि yes this theta will change with n. If you change the refractive index, theta will change. Now for different wavelength of incident light, value of n is different. अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें यह कहा जा रहा है कि फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट। तो नेचुरली इस प्रिज्म के मटेरियल को बदलने की जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट चेंज द इंसिडेंट लाइट, इफ यू चेंज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बिकम डिफरेंट। एंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n becomes different, then the angle of emergence will also become different. तो यहां से अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को भेजेंगे तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और n की वैल्यू अलग अलग होगी, तो थीटा तो अलग अलग होगा ही, बिकॉज ये थीटा और n में रिलेशन है। इफ n इज डिफरेंट, थीटा इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, मान लीजिए, सॉरी ये इमर्जेंट रे। अब अगर वेवलेंथ को स्लाइटली तुमने बदल दिया तो n बदल गया, n बदलने से ये जो रे है प्रिज्म के अंदर, इट विल टेक ए डिफरेंट पाथ, क्योंकि इसका डेविएशन अलग होगा। और नेचुरली यहां पे भी जो लाइट रे निकलेगी इट विल टेक ए डिफरेंट पाथ। तो नेचुरली जो लाइट रे निकलेगी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी। तो यहां जो पूछा गया फाइंड डिस्पर्सन एंगल, तो अगर मैं इसको एक ही जगह पूरे डेविएशन को दिखा दूं सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए एक ही जगह पूरे डेविएशन को दिखा दूं, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इजंट इट? जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटी होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटी मतलब लेस डेविएशन। तो जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा वो शायद यहां निकला, और जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा वो यहां निकला। तो जो बाहर लाइट बीम निकलेगी उनमें जो दोनों एक्सट्रीम रेज होंगे, सबसे छोटे और सबसे बड़े वेवलेंथ को एक्सट्रीम रे कह रहा हूं, इनके बीच में एक एंगल होगा, यही डिस्पर्सन एंगल है। इसी एंगल को कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है। तो आप में से जो लोग इसको ट्राई करना चाहें रुक जाएं और जरूर ट्राई करें। सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है। देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें यह मिलता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर लैम्डा की वैल्यू में डेल्टा लैम्डा का बदलाव करोगे, अगर लैम्डा को थोड़ा सा बदलोगे, डेल्टा लैम्डा, वी आर अज्यूमिंग दैट डेल्टा लैम्डा इज अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो इफ लैम्डा इज चेंज बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा लैम्डा, then value of n will change correspondingly by a small amount delta n,
which is obtained just by differentiating this. Now what will be delta theta? What is delta theta? What is delta theta? Delta theta is change in value of this theta, right? It is change in value of this theta. How do we obtain that? Delta theta is equal to minus 4b by lambda q डेल्टा लैम्डा. यहां देखिए अभी जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के मैं पूछ रहा हूं. मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में ये सब जो लिखा है वो लिखा है, इन एडिशन टू दैट वो सब लिखा है. मतलब लाइट रे 60 डिग्री पे ही भेजी गई है. तो इस समय जो डी थीटा बाई डी एन है उसकी वैल्यू तुमने अभी अभी कैलकुलेट की कि 2 है. इस समय डी थीटा बाई डी एन कितना है, उसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट की कि 2 है. तो भाई डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू 2 है. गौर करना, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा थीटा is 2 times delta n. For small changes in value of n, there will be small change in value of theta, and delta theta can be written as 2 times of delta n. तो वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का बदलाव हुआ. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का बदलाव हुआ तो वो जो थीटा में चेंज हुआ वो कितना हुआ? डी थीटा बाई डी एन तुमने 2 निकाला है ना, एम की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है ये. तो डी थीटा बाई डी एन इज इक्वल टू 2. So corresponding change in value of theta can be written as 2 times of delta n. So this is delta n, multiply this by 2, इसको 2 से multiply किया, डेल्टा थीटा निकल गया. Which means कि अगर मैं इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक छोटा सा बदलाव डेल्टा एन करता हूं तो यहां जो लाइट निकली, इस लाइट रे के एंगल ऑफ इमर्जेंस में थीटा में जो बदलाव होगा डेल्टा थीटा, इट इज 2 टाइम्स डेल्टा एन. और वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज करने से जो डेल्टा एन की वैल्यू बदली है वो इतनी बदली है. तो वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का चेंज और थीटा की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग चेंज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एन. तो ये इतना हो गया. अब क्वेश्चन में जो कहा गया है कि दैट वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा. तो लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा मतलब लैम्डा नॉट से डेल्टा लैम्डा ज्यादा और डेल्टा लैम्डा कम भी. तो जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो एक बार तो माइनस दिस होगी और एक बार प्लस दिस. क्यों? जब डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है मतलब आपने लैम्डा को बढ़ाया है, तो डेल्टा थीटा निगेटिव है, थीटा की वैल्यू घटी है. निगेटिव मीन्स घटी है. और जब डेल्टा लैम्डा निगेटिव है मतलब आपने जब लैम्डा को कम किया है, तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ी है. तो बच्चों ये समझिएगा कि अगर मैं दिखाऊं ओरिजिनली लैम्डा नॉट वेवलेंथ पे ये सिचुएशन था, तो एक एक्सट्रीम पे ये डेल्टा थीटा कम हो गया और दूसरे एक्सट्रीम रे के लिए, एक्सट्रीम रे मतलब दो सबसे छोटे और सबसे बड़े वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो एक केस में ये एंगल थीटा जो है वो डेल्टा जो भी डेविएशन एंगल था, इमर्जेंस एंगल था, वो डेल्टा थीटा घट जाएगा और एक केस में डेल्टा थीटा बढ़ जाएगा. तो नेचुरली एंगल बिटवीन 2 एक्सट्रीम रेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस. दोनों एक्सट्रीम रेज के बीच का जो एंगल है, फिर से समझ लीजिए, अगर एग्जैक्टली लैम्डा नॉट एंगल पे भेजा जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही √3 है, लैम्डा नॉट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है. ये सेंटेंस और इसमें लिख दिया जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम पिछले ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. फॉर लैम्डा नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3. ये ऐड कर लीजिए. मतलब जो पिछला क्वेश्चन दिया गया था वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ के लिए दिया गया था. लाइट रे 60 पे निकली. अब अगर लैम्डा नॉट की जगह लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा का इस्तेमाल किया, एक ऐसा वेवलेंथ का इस्तेमाल किया, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एन नहीं रह जाएगी, डेल्टा एन से बदल जाएगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डेल्टा एन से बदलेगा तो जो एंगल है थीटा जो 60 डिग्री दिया है उसकी वैल्यू में ये बदलाव होगा. तो हम एक बार कह रहे हैं कि लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा है और दूसरी बार कह रहे हैं कि लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा है. तो एन की जो वैल्यू है उसमें जो डेल्टा एन का चेंज है वो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हुआ ना भाई. तो डेल्टा थीटा की वैल्यू में भी चेंज एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हुआ. दैट मीन्स जो पहले से थीटा 60 डिग्री था एंगल ऑफ इमर्जेंस, एक बार एंगल डेल्टा थीटा ज्यादा हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा थीटा, और एक एक्सट्रीम कलर के लिए, एक एक्सट्रीम वेवलेंथ के लिए वो 60 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा. तो जो दोनों रेज बाहर निकली, एक्सट्रीम रेज, मार्जिनल रेज, उनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा का डबल, दैट मीन्स 8b बाई लैम्डा क्यू इंटू डेल्टा लैम्डा हो जाएगा. आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ गया। एक और क्वेश्चन इस पे मैं आपको दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। ये मेरी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 130 है, रे ऑप्टिक्स के चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अब कर पाएंगे आप। ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लैम्डा नॉट वेवलेंथ की लाइट इस पे जब इंसिडेंट होती है तो फोकल लेंथ एफ नॉट पाया गया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सभी लाइट रेज यहां जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। ये फोकस है फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, और ये जो लेंथ है ये एफ नॉट के इक्वल है। नाउ सपोज वी सेंड ए लाइट हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा। इसका स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा से लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में, एंड इट इज गिवन दैट डेल्टा लैम्डा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू लैम्डा नॉट। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझा चुका। तो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जब भेजी जाती है तो सारे लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगे। लाइट रेज जो है वो पॉइंट ए से बी के बीच में हर जगह पे फोकस होंगे। ये दोनों एक्सट्रीम वेवलेंथ जो है वो यहां और यहां फोकस होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ए बी, आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है, आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है बच्चों। इट इज अगेन गिवन दैट refractive index of the material of the lens, refractive index of the material of the lens as a function of wavelength lambda is a plus b by lambda square. A and b are two positive constants. So refractive index as a function of wavelength is a plus b by lambda square. अगर मैं इस लेंस के ऊपर एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ भेजता हूँ, हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होके एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रेंज के ऊपर फोकस होती है ए से बी तक के बीच में। तो आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूं कि नहीं देखता हूं, पर इसमें मेन बात मैं आपको समझाना चाहता हूं जो उसको लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी ने देखा होगा आई गेस। ऐसा है कुछ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और ये एक मिरर है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मतलब फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ये लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे मिरर रखी हुई है। मिरर पहले ऐसी थी, ऐसा सोचो, अब उसको टिल्ट कर दिया गया सच दैट कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है, मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। हमें बताना है कि फाइनली ये जो छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर जो इमेज बनेगा, उस इमेज के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ ऑरिजिन इस पॉइंट को लेना है, ठीक है, और इसे एक्स एक्सिस लेना है और इसे वाई एक्सिस लेना है। ऐसा करके हमें मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूं कि क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या सोच कर ये क्वेश्चन दिया था, ऑप्शंस ऐसे क्यों दिए थे। मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली उनके मन में घुस के तो नहीं देख सकता, पर मुझे जो समझ में आता है कुछ ऐसा सोचा गया इस क्वेश्चन को देते समय। सबसे पहले लेंस को देखिए, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेंस की वजह से इमेज कहाँ पे बननी थी। लेंस फॉर्मूला लगा के देख लीजिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u माइनस 50। आई होप ये सभी को करना आता है। लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सो 1/v इज 1/30 माइनस 1/50, so 1/v is equal to, this is 150, 5, 3, v is equal to 75 सेंटीमीटर पॉजिटिव, विच मीन्स मैं एक यहाँ पे ड्राइंग ले लेता हूँ। ये लेंस है, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ से चलने वाली लाइट रेज जो है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद 75 सेंटीमीटर दूर यहां जाके प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलने वाली थी। ये इमेज बनना था अगर ये सिर्फ लेंस होता तो,
ये डिस्टेंस 75 होना था। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि यहां बीच में यहां से 50 सेंटीमीटर दूर एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां कहीं एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये लाइट रे जो लेंस से रिफ्रैक्ट होके चली है उसको यहां पहुंचना था, पर यहां कभी पहुंच पाएगी नहीं क्योंकि बीच में मिरर आ गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस रिफ्लेक्शन के इवेंट के लिए, जो मिरर पे रिफ्लेक्शन का इवेंट होने जा रहा है, इस रिफ्लेक्शन के इवेंट के लिए ये इंसिडेंट रेज है। ये इंसिडेंट रेज का वर्चुअल मीटिंग पॉइंट है I1। तो एक्चुअली इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, इजंट इट? लाइट रेज यहां पे मिल नहीं पाई। इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये दिस इज 50, दिस इज 75, दिस इज 25। ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पोल से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मिरर ऐसे रखा होता such that its principal axis is same as the principal axis of the lens, अगर ऐसे रखा होता, एक मिनट मान लीजिए ऐसे ही रखा है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर दूर इधर होता। एक मिनट मान लेते हैं कि मिरर ऐसे ही है, जस्ट एज्यूम कि मिरर ऐसे ही है। अब अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं बच्चों, अगर हम मिरर फॉर्मूला लगाएं तो ध्यान दीजिएगा, v की जगह क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ये पॉजिटिव साइड में है, +25। आई एम सॉरी, u की जगह पे v तो v ही है, +25। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर है, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। तो 1/v जो है वो 1/50 माइनस 1/25, 50 v जो है इट टर्न्स आउट टू बी -50 सेंटीमीटर। गौर किया जाए, जो v है वो 50 सेंटीमीटर आता अगर मिरर ऐसा होता। दैट मीन्स ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां से 50 सेंटीमीटर दूर, दिस इज -50, राइट? सो -50 मीन्स इमेज इधर बनता, यहां पे बनता। ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होके आती वो यहां आती, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहां आती, यहां पे इमेज बनता I2। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद तो इमेज यहीं पे बनता अगर मिरर ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन, मिरर की पोजीशन ये होती। आई होप आई हैव डन द राइट कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन बनाने वाले ये सोचते हैं, देखिए सुनिए मेरी बात को, कि इस मिरर को अगर हम 30 डिग्री से टिल्ट कर दें, इस मिरर को अगर हम 30 डिग्री से टिल्ट कर दें, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन मिरर में होता है वैसे ही ये जो सारी रिफ्लेक्टेड रेज है लाल वाली, ये सब 60 डिग्री के एंगल से घूम जाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि अगर इस मिरर को मैं 30 डिग्री से ऐसे टिल्ट करूंगा तो ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सब 2 थीटा से टिल्ट करने पे मिरर को रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाती है। तो ये जो दो ही रेज मैंने दिखाई है, करोड़ों रेज हैं, वो सारी की सारी रेज 2 थीटा के एंगल से, मतलब 60 डिग्री के एंगल से घूम जाएंगी। ये सोचकर उन्होंने ये जो मिरर है इसको अगर हम ऐसे 30 डिग्री घुमा देते हैं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट ए मिनट, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे कर देते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे हैं सब 2 थीटा मतलब 60 डिग्री से घूम जाएंगी, तो इमेज यहां से 50 सेंटीमीटर दूर यहां से 60 डिग्री घुमा दो। उन्होंने ऐसा सोचा, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं। उन्होंने ये सोचा कि इमेज यहां से 50 सेंटीमीटर दूर इसको 60 डिग्री घुमा दो। ये 60 डिग्री मान लो, ये 50 सेंटीमीटर मान लो, ये फाइनल इमेज की पोजीशन होगी। तो अगर ये 50 मान ले और ये 60 मान ले तो नेचुरली दिस इज 50 cos 60 मतलब 25 एंड दिस 50 sin 60, तो ये 25√3 हो गया। तो उनके हिसाब से जो इमेज बननी थी वो यहां पे बननी थी, यहां से 50 सेंटीमीटर दूर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहां से उसकी दूरी 25, मतलब यहां से दूरी 25, एक्स कोऑर्डिनेट 25 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 25√3 हो जाएगा। अगर ऐसा मान लें तो आपको ये सही आंसर ऑप्शन ए दिखने लगेगा। उन्होंने तो क्वेश्चन यही सोच कर दिया था।
पर बच्चों क्या ये सच में वैलिड है? क्या हम एक कर्व्ड मिरर को ऐसे थीटा एंगल से टिल्ट करें तो सारी इंसिडेंट रेज जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी, वो सब के सब ओरिजिनल पोजीशन से 2 थीटा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी? क्या ये जो प्लेन मिरर के लिए फंडा हम पढ़ते हैं, क्या वो स्फेरिकल मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है? एक बार इसको चेक कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। ये मैंने एक प्लेन मिरर बनाया है, ये नॉर्मल है, ये एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। बातचीत में आसानी के लिए जल्दी से समझ जाए इसके लिए चलो मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, याद रखना ये 30, ये 30। अब इस मिरर को यदि मैं लेट अस से 10 डिग्री के एंगल से टिल्ट कर देता हूं, 10 डिग्री के एंगल से, तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल, ये नॉर्मल जो मिरर पे, ये भी 10 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा। ये नया नॉर्मल, ये 10 डिग्री से टिल्ट हो गया, 10 डिग्री मान लेते हैं बातचीत में आसानी के लिए, मिरर को 10 डिग्री से घुमाया। अब देखो अगर इंसिडेंट रे जैसी थी वैसी ही रहे तो इंसिडेंट रे और ये जो नया वाला नॉर्मल है, ये नया वाला नॉर्मल, इसके बीच का ये एंगल 40 डिग्री हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नए नॉर्मल से 40 डिग्री के एंगल पे जाएगी। ये नई रिफ्लेक्टेड रे है जो नए नॉर्मल से 40 डिग्री के एंगल पे जाएगी, ये 40 डिग्री का एंगल हो गया। तो भाई पहले जो इंसिडेंट रे थी वो इस नॉर्मल से 30 पे थी, रिफ्लेक्टेड रे 30 पे जाती थी, ये वाला एंगल 30 था, ये वाला एंगल 30 था। अब जब तुमने मिरर को टिल्ट किया, इंसिडेंट रे वही है, तो नॉर्मल झुक गया, ये जो नॉर्मल है ये 10 डिग्री से इधर टिल्ट हो गया। तो नॉर्मल 10 डिग्री से टिल्ट हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 10 डिग्री बढ़ के 40 डिग्री हो गया। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से 40 डिग्री पे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब अगर ये जो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे था, रिफ्लेक्टेड रे 1 और ये रिफ्लेक्टेड रे 2 आफ्टर रोटेशन ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच का एंगल आप देखें तो बहुत आसानी से देख पाएंगे कि दिस एंगल इज 20 डिग्री। खुद से वीडियो रोक के बढ़िया साफ डायग्राम है, चेक कर लेना। यू विल फाइंड कि मिरर को 10 डिग्री से घुमाने से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 20 डिग्री के एंगल से घूम गई, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई मिरर पे इंसिडेंट रे पॉइंट ओ पर आई, आपने मिरर को पॉइंट ओ के अबाउट घुमाया, अगर मिरर को किसी और पॉइंट के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा? ये डायग्राम को फिर से देखते हैं। इस बार मैं सब कुछ सेम है ऐसा मान लो, फिर से ये 30 डिग्री जितना था सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इस बार जो मैं करने जा रहा हूं मिरर को पॉइंट ओ के अबाउट नहीं घुमाऊंगा, ये मैंने मिरर को मान लो ऊपर के पॉइंट के अबाउट में घुमा दिया, फिर से 10 डिग्री से ही घुमाया। इस बार ये जो रिफ्लेक्टेड रे है अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट होगी? आंसर है इस बार भी 20 डिग्री से ही डेविएट होगी। जी हाँ, अगर एक प्लेन मिरर है तो उसको आप किसी भी पॉइंट के अबाउट थीटा एंगल से घुमाओगे तो जो इंसिडेंट रे है ना वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। किसी भी पॉइंट के अबाउट से मेरा मतलब है इस प्लेन में रोटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि मिरर ऐसे है, ये इंसिडेंट रे है और तुम मिरर ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ये बात है। तो आप मिरर को अगर ऐसा घुमाते हैं, इस पॉइंट के अबाउट भी अगर घुमाएंगे तो नथिंग हैज चेंज। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है अब इस पॉइंट पे मिरर को नहीं हिट करके इस पॉइंट पे हिट करेगी, क्योंकि मिरर तो यहां आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, गौर किया जाए। लेकिन नॉर्मल जो है वो अभी भी, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये जो नॉर्मल है ये अभी भी इतने ही एंगल से घुमा। अगर ये 10 डिग्री है तो ओरिजिनल जो नॉर्मल था उससे ये नॉर्मल 10 डिग्री ही डिफ्लेक्ट हुआ है। ये प्लेन मिरर है भाई, इस पे किसी भी पॉइंट पे, इस पे जो परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ऑल परपेंडिकुलर्स आर पैरेलल। तो जब मैं मिरर को किसी भी पॉइंट के अबाउट 10 डिग्री से घुमाऊंगा तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जितने भी नॉर्मल्स हैं सब के सब 10 डिग्री से ही घूमेंगे ना। पहले सब एक दूसरे के पैरेलल थे, हर पॉइंट पे नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के पैरेलल था और सभी नॉर्मल 10 डिग्री से घूम गए। तो जब मैंने मिरर को टिल्ट भी कर दिया, अब ये इंसिडेंट रे यहां नहीं इंसिडेंट होके यहां हो रही है, कोई बात नहीं, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो भी जो पहले का ओरिजिनल डायरेक्शन था उससे 10 डिग्री घूम गया है। तो अभी भी इंसिडेंट रे और नए नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो 40 डिग्री ही होगा। अभी हमारी बातचीत में जो एंगल चल रहा है ये 30 था, तो नया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अभी भी 40 होगा। जो रिफ्लेक्टेड रे है उस नए नॉर्मल से 40 डिग्री पे ही जाएगी, इसलिए जो डेविएशन हुआ रिफ्लेक्टेड रे का वो अभी भी 20 डिग्री ही रह जाएगा।
तो प्लेन मिरर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस पॉइंट के अबाउट मिरर को रोटेट कराया है, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्फेरिकल मिरर का केस देखिए, ये मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, स्फीयर ही बना दिया मैंने, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक इंसिडेंट रे लेते हैं, ये वाली, इस मिरर को मत देखिए, इसको देखिए आप, ये इंसिडेंट रे, समझिएगा मेरी बात को। ये इंसिडेंट रे यहां पे हिट कर रही थी, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, ठीक। यहां जो नॉर्मल है वो और कुछ नहीं बल्कि मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप इसको ऐसे जोड़ दें तो ये नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों ब्लैक लाइन के बीच का ये एंगल है, ठीक। अब आपने मिरर को इस पॉइंट के अबाउट में घुमाया है, गौर कीजिए, जो क्वेश्चन था अभी वो ऐसा ही था कि मिरर को इस पॉइंट के अबाउट में तुमने घुमा दिया। घुमाने से क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे तो वही रह गई, पर मिरर को घुमाने से अब ये इंसिडेंट रे यहां जाके मिरर को नहीं हिट कर रही, यहां पे कर रही है। एक्चुअली में ये पॉइंट बी जो है, इसको नाम अगर मैं बी दूं, तो मिरर के ओरिजिनल पोजीशन में जब मिरर को नहीं टिल्ट किया था तो ये पॉइंट बी शायद यहां रहा होगा, समझिएगा मेरी बात को। ये कर्व्ड मिरर है, इसको ऐसे झुकाओगे तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया इसके रास्ते में, मिरर को टर्न करने से ये पॉइंट आ गया इसके रास्ते में। अब प्लेन मिरर और इसमें एक भारी फर्क है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्लेन मिरर में किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल था ना, वो सब एक ही डायरेक्शन में थे, तो मिरर को किसी भी पॉइंट के अबाउट 10 डिग्री से घुमाया तो सारे नॉर्मल 10 डिग्री से घूम गए। भाई इस पॉइंट पे अब इंसिडेंट रे मिरर से नहीं टकरा रही, इस पॉइंट पे टकरा रही है, पॉइंट चेंज हो गया, लेकिन वहां जो नॉर्मल है वो भी प्रीवियस डायरेक्शन से 10 डिग्री ही घुमा है, तो डजंट मैटर, सारे नॉर्मल 10 डिग्री घूमे हैं। इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे हिट हो रही है, लेकिन वहां जो नॉर्मल है वो पहले के नॉर्मल से 10 डिग्री घूमा है, तो अभी भी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 10 डिग्री ही बढ़ा है। लेकिन क्या वैसा यहां होगा? आंसर है नहीं। अगर मैं एक इंसिडेंट रे के पैरेलल इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल रे यहां बना दूं, यहां इस पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं। नेचुरली यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए पे इस रे का और इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। भाई इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये पॉइंट लोगे, ये एक लाइट रे ऐसे आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया ना। अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे रेज कंसीडर करता हूं तो जितनी ज्यादा हाइट पे रे होगी उतना ही बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो नॉर्मल है और यहां पे जो नॉर्मल है दोनों सेम डायरेक्शन में तो नहीं, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों नॉर्मल के डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब इस मिरर को इस पोजीशन से मैं टिल्ट करके इस पोजीशन में लाऊंगा, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जब मिरर को लाऊंगा तो अब पॉइंट सी यहां आ गया और ये इंसिडेंट रे वहीं की वहीं है, तो पॉइंट सी पे टकराई, सी जो कि यहां आ गया जिसको मैंने बी कहा है, अब वो बी पे टकराई। तो भाई पहले ए और सी पे जो नॉर्मल थे, ए और सी पे जो नॉर्मल थे वो सेम डायरेक्शन में नहीं थे, उनके बीच में ऑलरेडी एक एंगल था। अब जब आपने मिरर को 10 डिग्री से घुमाया तो ये सारे नॉर्मल, ए पे जो नॉर्मल है वो भी 10 डिग्री से घूम गया, सी पे जो नॉर्मल है वो भी 10 डिग्री से घूम गया, ट्रू। तो ये पॉइंट खिसक करके यहां आ गया और ये इंसिडेंट रे से टकरा गया। ये नॉर्मल 10 डिग्री से घूमा, ये नॉर्मल भी 10 डिग्री से घूमा, लेकिन भाई ये जो एंगल 30 डिग्री था, ये एंगल तो 45 डिग्री था। पहले से हॉरिजॉन्टल के साथ ये नॉर्मल और ये नॉर्मल सेम एंगल नहीं बना रहे थे। तो जब पॉइंट सी टिल्ट होकर यहां पहुंचेगा और इस लाइट रे के पाथ में आएगा तो जो वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो उतने एंगल से चेंज नहीं हुआ जितने एंगल से तुमने मिरर को टिल्ट किया है। इस वजह से यह सोचना कि जैसे प्लेन मिरर में होता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मिरर को घुमा दो और इंसिडेंट रे अगर वही है, मिरर का एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, तो ऑल रिफ्लेक्टेड रेज विल रोटेट बाय 2 थीटा, यह सोचना गलत होगा अगर हम एक कर्व्ड मिरर की बात कर रहे हैं। इसलिए
इस तरह से सोच के जो उन्होंने क्वेश्चन बनाया था जिससे कि एग्जैक्ट आंसर मैच करता, और यही शायद उनके आंसर की में आज भी शायद आंसर पड़ा हुआ है, ये तो सही नहीं लगता, ये तो गलत लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, अगर इसको पैराक्सियल रे मानेंगे तो यहाँ पे इसको प्लेन मिरर मान। अरे उसको प्लेन मिरर मान लोगे तो फिर कर्व मिरर की पढ़ाई पढ़ क्यों रहे हो? कर्व मिरर के जितने फॉर्मूले हैं ये सब फॉर्मूले क्यों पैदा हुए? क्योंकि हम इसे प्लेन मिरर नहीं मान रहे हैं। अब तुम उसे वापस प्लेन मिरर मान लोगे तो फिर ये सब फॉर्मूले क्या है? ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं। पैराक्सियल रे के लिए भी आपने उसे प्लेन मिरर थोड़ी माना है। प्लेन मिरर माना होता तो फिर ये फॉर्मूला क्यों होता? प्लेन मिरर का ही फॉर्मूला चलता। सोच के देखना जरा, वो जो कर्वेचर है, जो टर्निंग है, ये जो घुमाव है, इसको हम अकाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, पैराक्सियल रेस की पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन उसको अकाउंट में ले रहे हैं। तो ये मिरर घुमा हुआ है ऐसा तो मानना पड़ेगा। इसको ऐसे टिल्ट करने से इमेज सीधे सीधे 2 थीटा से टिल्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो एक्चुअली में अब आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को बनाओ, आपको एग्जैक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक, मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ, लगभग इसके आसपास आंसर मिलता है तो लोगों ने उसको सही मान लिया, आईआईटी वाले भी आगे बढ़ गए। तो एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वो तरीका आपको आता होगा, मुझे मेरा मानना है, फिर भी मैं एक बार जल्दी से बोल देता हूँ, जल्दी से बोल देता हूँ। देखिए, वो तरीका गलत है, इस क्वेश्चन के लिए गलत है, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स हैं, रेस को हम पैराक्सियल नहीं मान सकते। देखिए, ये लेंस है, अभी अभी हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट का लेंस ने जो इमेज बनाया वो यहां से 75 सेंटीमीटर दूर, यही इमेज हमारे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। अब जो हमारी मिरर है उसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है 30 डिग्री पे ऐसा। अब मिरर को मैं यहां पे ऐसे छोटा सा बना दे रहा हूं ऐसा। ठीक, ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक, ये 30 डिग्री। लेकिन हमारे सारे मिरर फॉर्मूला में हम जो ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं वो तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है I1, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और वो UVF वाले जो फॉर्मूले होते हैं उसमें आप बोलेंगे कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट इतनी है। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी ट्रीट इट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आप देख लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री है, ये 25 है, तो ये 25 साइन 30 डिग्री 25/2 हो जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 12.5। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। हम फिर भी इसको मान लेंगे कि पैराक्सियल रेस का अप्रोक्सीमेशन सही है, वो जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं वो सब सही है, हालांकि वो गलत होने वाला है, इजंट इट? इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वो फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है, पर ठीक है। ये जो दूरी है, सिमिलरली यू कैन वर्क इट आउट, इट विल बी 25 cos 30 डिग्री, so 25√3/2। ठीक है, नाउ you will assume that this is a convex mirror of focal length 50. This is the object, a virtual object. Light rays are incident from this side. So in place of u, you will write plus 25√3/2. In place of focal length, you will write plus 50. You will do calculation to get the value of v. उससे आपको इमेज की पोजीशन मिल जाएगी कि इमेज इसको ऑब्जेक्ट माने तो इमेज कहाँ बना है। Now apply the magnification formula and you will know कि if object is this tall, हाउ टॉल इज योर इमेज। तो उससे आपको इमेज की ऐसी कुछ पोजीशन मिल जाएगी। तो एक्चुअली में इस पॉइंट का इमेज ये पॉइंट होगा। अब थोड़ा सा ऐसे ही ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री करके आप उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, बट लेट मी टेल यू दिस मेथड इज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट बिकॉज कंपेयर टू फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दिस हाइट इज नॉट नेग्लिजिबल। पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन आर going to go for toss in such cases. We should not be using those formulae. या क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि assume paraxial approximation, तो भी हम ऐसा करते, और ऐसा कैलकुलेशंस करने के बाद you don't get exact answer. I mean the options given does not match with your answer. तो इससे मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने तो यही सोच के क्वेश्चन दिया था कि ये मिरर है,
अगर ऐसा होता तो इमेज यहाँ बनता, थीटा घुमाओ तो 2 थीटा से इमेज घूम जाएगा, तो 60 डिग्री पे घुमा के और ऐसा क्वेश्चन दे दिया। बट दिस इज ऑल टुगेदर रॉन्ग। अगर ये प्लेन मिरर होता तो बिल्कुल सही होता ऐसा सोचना, पर कर्व्ड मिरर के लिए ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आई होप कि आज के इस डिस्कशन से आपको कुछ बातें ठीक ठीक समझ में आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।